Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग. कैसे हैं आप? I'm good. अच्छा, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. So my name is Varsha Gehlot. I belong to Udaipur district. I have done my graduation in Bachelor of Technology from Modi University of Science and Technology, Sikar. सीकर और लक्ष्मणगढ़. Yes, sir. Lakshmangarh, Sikar. So why do you want to become an RS officer? So this is the one field, civil services is the one field which provides us more diversity in the services. As well as, sir, it enhances our capacity as well as capability to do more. So one thing that if one has capability to do more, then why to do less? So that is why, sir, I want to join this services. Okay, what capabilities do you think that you have? So I think for being a civil servant, one needs to have aptitude as well as attitude for the services. And so in terms of aptitude, so I have good reasoning skills, comprehension skills, analytical skills, as well as in terms of attitude, I have dedication, then the compassion, empathy, the sensitivity. Don't you think that you could have become a better engineer than an RS officer? So I chose BTech as my graduation because, sir, in around in class 10th or 12th, we generally have a social perception develops among our peers as well as our teachers and parents that taking a science degree or doing some professional degree, you will secure your career. Okay. So at that time, sir, we don't actually know what is. So for myself, I didn't actually know what is an engineer, what will a doctor do, what will an engineer do. So at that time, in that social perception, I took BTech as my degree, and in doing during BTech, I did justification with the degree. Also, I did studied it, but I thought later on after doing BTech that I can't pursue it longer in my future because I will not have that interest for in my longer future. Okay, so should we conclude that job security is more important for you? So job security is one of the factor, but more is interest in the job, sir. For me, more is my interest in the job. Okay, so your hobbies are debating on international relations and geopolitics. Yes, sir. What is geopolitics? Geopolitics is so geo is in original terms. Geo means earth, in way the land, and politics which involve more land, whatever is taking place on land. According to me, that is geopolitics. Okay, what do you think about Pakistan policy of NDA government? Pakistan policy of NDA government. The way they deal with Pakistan. Yes, sir. What do you think about it? So, I think that right now the government, NDA government is following the policy of not being submissive towards those countries which are taking a attacking aspect towards us. Like we are being more defensive. We are taking more defensive policy towards those countries uh, who are having an attacking aspect towards us. Okay, so which one do you think is better, the policy that was adopted by the UPA government or the present government? So I think it all depends upon the time. Like during the UPA regime, whatever the circumstances were, they took the policies according to that. But right now, the circumstances are according to the circumstances, the government is taking such actions. So, you are speaking English very well, and you are going to be RS officer. And you know very well that the people of Rajasthan, they can't speak Hindi properly, and you will have to deal with the public of Rajasthan. वो मारवाड़ी बोलते हैं, वो राजस्थानी बोलते हैं. कैसे कम्युनिकेशन करेंगे आप? नहीं सर, मैं अभी हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ.
ओके, मतलब हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इट्स ओके, बट राजस्थान की जनता तो हिंदी भी प्रॉपरली नहीं बोलती है। तो मैं वैसे तो मतलब रीजन मेरा उदयपुर है, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर है, तो मेवाड़ी में सब मैं कम्युनिकेट कर लूंगी। पर सर मैं लैंग्वेजेस भी सीख सकती हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और उन टाइम में मैं लैंग्वेजेस से मतलब जो डायलेक्ट्स हैं, जो लोकल जो रीजनल लैंग्वेज चलती है, उसको भी मैं सर अडेप्ट कर लूंगी। आपकी जो हॉबीज है वो Yes. आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ मदद करेगी? तो एक्चुअली मैंने अपनी एक हॉबी शायद जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी तब मैं पुटअप नहीं कर पाई थी। एक हॉबी मेरी योगा भी है और दूसरी मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करना भी है। तो सर इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते वक्त हमें एक काफी बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है चीजों को लेकर, क्योंकि डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक चीज को लेकर स्पेसिफिक नहीं हो सकते हो, आपको बहुत सारे डायमेंशंस देखने पड़ते हैं। Okay, तो सर all right. Diplomacy is a subject of the union list, and you are going to be a RS officer, ये and you know very well that you will have to deal with the state list. Then ये तो आपका जो हॉबी है उसका तो राजस्थान में कोई मतलब ही नहीं है उसका। नहीं सर, जैसे डिप्लोमेसी में हम अगर डिप्लोमेसी पढ़ते हैं इंटरेस्ट से तो एक आदत बन जाती है सर कि हम दूसरे दूसरे डायमेंशंस को देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया, फिर से पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गए, और आपका थोड़ा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया। तो सर वो डायमेंशन देखने की आदत हो जाती है, तो हर चीज में हम फिर उन डायमेंशंस को ढूंढते हैं। तो सर मुझे लगता है इस चीज में शायद ये मेरी हॉबी हेल्प कर सकती है मुझे दूसरे डायमेंशन में देख। एक डिबेटर हमको नहीं चाहिए प्रशासन में, हमको एक ऐसा प्रशासक चाहिए जो ज्यादा सुने। Yes, sir. तो आप तो वहाँ डिबेट करेंगे, बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देंगे सरकार के लिए। सर डिबेट नहीं सर, जैसे कोई भी अगर हमारे पास कोई भी केस आता है, जैसे कोई भी सिचुएशन होती है, उसको हम दूसरे दूसरे एस्पेक्ट में देख सकते हैं। और सर जैसे तो मैं अभी तो यही बता सकती हूँ, किसी सिचुएशन को मैं दूसरे एस्पेक्ट में देख सकती हूँ अगर मेरे पास जैसे मेरी ये हॉबी है। ओके, ऑल राइट, यू हैव इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो एक पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, एंड इन मोदी जी के जो एरा है उसमें एक आया पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देन दोनों में क्या अंतर है? सर लुक ईस्ट पॉलिसी 1990s के टाइम पर आई थी। तब जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उनको ये लगा था कि हम ईस्ट में ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे थे खुद को, तो और ट्रेड रिलेशंस भी और एक हमारा सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप भी है उन कंट्रीज से, जैसे म्यांमार हो गई और थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज में बुद्धिज्म के थ्रू भी हमारा एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट भी है। तो उस चीज को एक रीच आउट करने के लिए हमने पहले लुक ईस्ट लेकर आए थे। और एक्टिस्ट सर जब उनको लगा कि हाँ एक टाइम फ्रेम में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को लेकर आए, पर अब एक्ट करने की भी जरूरत है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने की भी जरूरत है, तब हम सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आए और उसमें हमने एक हाईवे कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं सर, थाईलैंड और म्यांमार और इंडिया का। उसके बाद सर बांग्लादेश के साथ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो सब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल और सर एक और BBIN। जी 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 जी, प्लीज 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 कंटिन्यू। सब नहीं, तो मैं प्रोजेक्ट बता रही थी, BBIN प्रोजेक्ट जो है वो भी एक्ट ईस्ट के अंदर ही हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भारत का संविधान भी कुछ कहता है? सॉरी सर, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसके बारे में संविधान में भी कुछ प्रावधान है? इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर जी जी सर, सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 51 में ये मेंशन है कि हमें तो मुझे करेक्ट वर्डिंग्स में रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर आर्टिकल 15 में हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर एक प्रावधान है सर, प्रोविजन है वहाँ पर। मैंने तो आर्टिकल 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा है। So Article 51A is fundamental duties, बाकी Article 51 में DPSP का ही ये इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर प्रावधान। अच्छा, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी?
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सर, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, उनको एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। अच्छा, मैं अगर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ द इंडिया, तो मेरे लिए क्या उसकी हो सकता है, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर हम फॉलो नहीं करते तो उसमें कोई मतलब सर लीगल प्रोविजंस नहीं है कि आप कि हमें किसी तरह का पनिशमेंट मिलता है, वो नहीं है। इम्प्लीमेंट मतलब वो इम्प्लीमेंटेड फेज में नहीं है, वो सिर्फ हम फॉलो कर सकते हैं अगर हम खुद चाहें तो। आपने आखा तीज नाम सुना है? यस सर, यस ये क्या है? सर, आखा तीज राजस्थान में ये एक पर्व की तरह इसको मनाया जाता है। और सर इस दिन तो मुझे इसका रिलीजन को लेकर क्या इम्पोर्टेंस वो भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर इस दिन मेनली बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस होती है राजस्थान में सर, इसको क्योंकि बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है, तो इस दिन ज्यादातर शादियां होती है और मेनली चाइल्ड मैरिजेस ज्यादा होती है। फिर आप क्या करेंगे एज ए ऑफिसर चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए? सर चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए मैं कोई कानून है हमारे देश में? सर मैं एक मिनट लूं। श्योर। सर चाइल्ड मैरिज को लेकर कोई लॉ सर मुझे भी नहीं याद आ रहा लॉ को लेकर, बट सर मैं जो एक्शन ले सकती हूँ वो ये है कि सर मेनली आखा तीज के दिन जो हमें पता है कि इस दिन जनरली बहुत सारी शादियां होती है, तो इस दिन हम हमारी मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और सर किसी भी ये जो ऐसी सोशल चीजें होती है सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल चीजें होती है इन्हें हम जब तक इनकी बिहेवियरल चेंज जो होता है वो नहीं लेकर आएंगे, तब तक पॉलिसी भले इम्प्लीमेंट कर दें या हम स्कीम लेकर आ जाए, कुछ नहीं हो सकता जब तक हम लोगों के अंदर बिहेवियर चेंज को नहीं लेकर आएंगे। तो मेनली हमें फोकस उस बिहेवियर चेंज की तरफ करना चाहिए। अच्छा, ये विशाखा गाइडलाइन क्या होती है? सर विशाखा गाइडलाइंस, तो विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस के अंदर दिए थे। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर गाइडलाइंस है जो महिलाओं के साथ होता था उनके वर्क प्लेसेस पे, तो उसमें गाइडलाइंस दी। ये विशाखा खुद कौन है? तो विशाखा तो ये केस जहां तक मुझे मैं रिकॉल कर पा रही हूँ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान के अगेंस्ट ही ये केस था। बाकी मुझे विशाखा का भी एग्जैक्टली याद नहीं। हाँ जी, आप मोदी कॉलेज की प्रोडक्ट हो तोदी कॉलेज की? सॉरी सर, मोदी कॉलेज या तोदी कॉलेज, लक्ष्मणगढ़ में दोनों है। तो मोदी कॉलेज वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है सर? वो यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी हो गया है। आपके कॉलेज की एक लड़की IBM में क्वांटम कंप्यूटर पे काम कर रही है अमेरिका में, हाई सिक्योरिटी में। ओके सर। तो आप IBM में नहीं जाना चाहती? नहीं सर एक्चुअली ऑफ कैंप मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था मेरा, बट मैंने ज्वाइन नहीं करके मैं इस प्रिपरेशन फेज में आ गई थी। लक्ष्मणगढ़ में एक बहुत फेमस मंदिर है नाथ संप्रदाय का, कभी देखा आपने? नाथ संप्रदाय? सर मैं सालासर बालाजी गई थी। बालाजी कितना दूर है वहां से? सर बालाजी तो मैं टाइम के टर्म्स में बता दूं सर, आधा घंटा दूर है। अच्छा, वो चूरू में है, सीकर में है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा? सर लक्ष्मणगढ़ में ही है, वो सीकर में ही है। अच्छा चलो ठीक। अब आप पे एक थोड़ा टफ सवाल पूछना है। जी। पन्नाधाय कौन थी? सर पन्नाधाय जो उदयपुर के महाराणा थे उदय सिंह जी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था पन्नाधाय। उनके नाम पर कहीं पे भी स्टेट में स्मारक है क्या कहीं? तो उदयपुर में एक पन्नाधाय मेमोरियल करके अभी बना है, गोवर्धन सागर के पास ही। गोराधाय भी कोई है क्या टेक्निकल टर्म? गोराधाय गोराधाय नहीं। अच्छा, मराठा जो है महाराष्ट्र के, वो कहते हैं वो उदयपुर से निकले हुए हैं।
इसके बारे में आपके क्या कमेंट है? सर नहीं, मुझे नहीं रिकॉल हो रहा अभी। शिवाजी महाराज का राज तिलक किया तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम तिलक नहीं करेंगे, आप प्रूफ लाओ कि आप राज परिवार के हो। तो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए जब उदयपुर आए थे उनका पीए, फिर सर्टिफिकेट लेके गया कि वो उदयपुर से निकले हुए हैं, तब उनको हिंदू सम्राट बनाया। इसके बारे में जानती हो कुछ? नहीं सर। चित्तौड़ और उदयपुर में कितना डिस्टेंस है? चित्तौड़ और उदयपुर में सर डिस्टेंस ट्रेन 1 घंटे का डिस्टेंस है। किलोमीटर में सर मैं अप्रोक्स अभी नहीं बता। आप लक्ष्मणगढ़ में प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी या अंदर कैंपस में रहती? सर कैंपस के अंदर। थैंक यू। तो वर्षा जी, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे एवरेज लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा हिस्ट्री में और करने की जरूरत है और थोड़ा अपनी हॉबी को भी और डेवलप करने की जरूरत है। देखिए वर्षा जी, हमने जो विचार विमर्श किया है उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपकी अपीयरेंस एकदम ठीक है, आपका जवाब देने का जो तरीका है वो एकदम ठीक है। आप हंसकर भी जवाब दे देती है जहाँ जरूरत होती है, जहाँ मुस्कुराहट की जरूरत होती है वो भी आप रखते हैं। पूरा अपीयरेंस आपकी ओवरऑल एकदम अच्छी है। थैंक यू। लेकिन देखिए, आपका जो ग्रेजुएशन जो हो रखा है, जहाँ से हो रखा है, जिस फील्ड से, जिस स्ट्रीम से आप आते हैं, वहां तो आप अच्छा करेंगे ये हमको मान के चल रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में आपसे आर्ट के बारे में पूछेंगे, कल्चर के बारे में पूछेंगे। इसलिए जैसे मैंने आखा तीज के बारे में आपसे पूछा तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से नहीं बता पाए। इवन आप मान के चलिएगा कि आपको राजस्थान के त्योहार के बारे में, राजस्थान की संस्कृति के बारे में, राजस्थान की वेशभूषा के बारे में जरूर प्रश्न पूछेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पुस्तक जरूर पढ़े राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पर। जयसिंह नीरज की किताब है, उस किताब को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उस इंटरव्यू बोर्ड के पास जैसे ही आपका ये सीवी जाएगा तो ये सब देखने के बाद में वो टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपसे बात नहीं करेगा, वो कंप्यूटर के बारे में आपसे बात नहीं करेगा, वो आईटी के बारे में आपसे बात नहीं करेगा, वो राजस्थान की हिस्ट्री पूछेगा। उनको मालूम है कि ये यहाँ पर मात खा सकता है। तो थोड़ा सा आप जयसिंह नीरज की किताब राजस्थान कला और संस्कृति को पढ़े, उससे आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत जानकारी हो जाएगी। और एक आप शर्मा की किताब आती है, शर्मा एंड शर्मा आई थी, उसमें राजस्थान की हिस्ट्री। आप उदयपुर से हैं तो उदयपुर में आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। उदयपुर के इतिहास पे तो पूरे हिंदुस्तानियों को गर्व होता है। तो आपको उदयपुर के बारे में, जयपुर के बारे में, इवन जोधपुर के बारे में, इन सब की हिस्ट्री भी पढ़नी है, क्योंकि ये सीधा पहले ही चांस में आप सॉफ्ट टारगेट हो जाएंगे यहाँ पर। ये सब चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा प्लीज सर। वर्षा जी, सर ने काफ़ी अच्छी बातें आपको बताई हैं, ठीक है। ओवरऑल हमारा यही ओपिनियन है कि आपका अच्छा था, कॉन्फिडेंस अच्छा था, आपका आंसर देने का जो स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है ना। थोड़ा सा नर्वसनेस बीच बीच में आ रहा था, लेकिन आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ जो है ना वो ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। फ्लुएंट हो आप, इंग्लिश में भी पूछेंगे तो आप आंसर्स दे दोगे, ठीक है। थोड़ा सा जैसे सर ने बताया आपको कि सब्जेक्ट नॉलेज जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें उसको, दूसरी चीज़ों के बारे में भी जो है सर। एक तो ये आपका चश्मा थोड़ा छोटा नहीं हो सकता? नहीं, यूं नहीं, बहुत बड़ा लग रहा है साइज के हिसाब से। और दूसरा ठीक है। दूसरा जैसे मैंने सालासर का पूछा तो सालासर है चूरू डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा सर, ठीक है। और उसे आधा किलोमीटर पर हमारे कॉलेज नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे में फंस सकती हो। और उसके पास में अंजनी माता का मंदिर है, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट में। जी सर, दोनों देखे होंगे आपने। तो आप एंटर करते हो तो लक्ष्मणगढ़ तहसील सीकर डिस्ट्रिक्ट है और मंदिर जो है चूरू डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ आश्रम है नाथ जी का, सरदारनाथ जी महाराज का आश्रम है बहुत बड़ा लक्ष्मणगढ़ में। क्योंकि आपने लिखा क्या योगा करती हो, क्या लिखा है इसमें? इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिबेट करते हैं। हाँ, योगा का आपने लिखा है। तो वहाँ बहुत बड़े ज्ञानी है महाराज वैद्यनाथ जी महाराज, हिंदी और अंग्रेजी के एमए गोल्ड मेडलिस्ट। तो थोड़ा सा इम्प्रूव करो। आपकी प्रॉब्लम क्या, आप इंजीनियरिंग से शिफ्ट कर रही हो इस एरिया में जहाँ पर एक्सपर्टीज आपको अभी नहीं है, ठीक है ना। तो तो सर मैं हिंदी में बोलूं वहाँ पर या फिर इंग्लिश में ही मैं कन्वे करना? आपसे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे हैं उस लैंग्वेज में।
ठीक अच्छा रहेगा हिंदी बोलो। हाँ ठीक है सर। लक्ष्मणगढ़ में रह के शेखावाटी नहीं सीखी? सर वो बहुत कम समझ में आई थी, मतलब समझने की कोशिश तो की थी, तो पर कम समझ में ही आई थी। लक्ष्मणगढ़ मेरा तहसील है। अच्छा, अच्छा, आप एक सर। चीज का और ध्यान रखिए, 24 अप्रैल 1993, जी सर। 24 अप्रैल का बहुत महत्व है, यू नो वेरी वेल। इवन जी 93 सर, पंचायती डे। जी जी जी। एंड 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस। यस सर, एंड केशवानंद 24 भारती। अप्रैल सचिन तेंदुलकर बर्थडे। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखना। यस सर, सो ओके, विश डेफिनेटली। यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर वन क्वेश्चन सर, वो जो आप बुक्स बता रहे थे राजस्थान हिस्ट्री वाली, फिर से अगर आप रिपीट कर जय सिंह नीरज। जय, ओके सर, ओके। या थैंक यू सर।